So yesterday we created this time dependent action, and then I told you one thing, that out of these three criteria, like created and every time it is edited, and created and anytime it is edited meeting the subsequent criteria. So the time dependent actions cannot be applied on this particular criteria, the second number, created and every time it is edited. Now we are going to discuss this reason why the time dependent action cannot be applied on this particular created and every time it is edited. So because I created one of the workflow rule yesterday with few of the time dependent actions, like we have created these all time dependent actions that we have created. So let's understand where exactly all these time dependent actions are stored. So whenever you have planned something periodically, whenever you have created a time dependent action in the workflow, so all these time dependent actions, whatever you have created, they are going to be stored in a memory which is called as workflow queue. Okay, all the time dependent actions, they are stored inside a memory called as workflow queue. So where exactly how to locate this? Let me show you that. So if we wanted to see where exactly is this this particular memory, so we need to go setup and then this monitor, and inside the monitor, see, there is an option, time-based workflows, right? This is the option. So this is basically a memory, right? Every time dependent actions, all the time dependent actions, every time dependent action, they are actually stored inside a memory. There's a memory for that. What is the name of memory? The memory name is actually workflow queue. So this is the memory. So all these time dependent actions that we have created yesterday, they are going to be stored inside one of the memory called as workflow queue. Workflow queue. So I'm telling you how to locate this memory. So you need to go to setup and then to the monitor menu, there's an option called as time-based work, right? You need to just click this. And whatever you wanted to see, you can either filter out your conditions or else do nothing. Just click on the search button. So all of the time-dependent actions that you have created, they are going to be get listed out. Okay. This what you are seeing right now, this what you are seeing right now from here to here, this everything. You are seeing it from one of the memory called as workflow queue memory. And now as you can see in this memory, how many actions are there. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, and 6. So these are the 6 different operations that we have created it yesterday, right? We created all these 6 different operations yesterday, and all of them are listed out over here. Chaliye. So what are the things that you are going to see over here is, first of all, kya naam hai iska, right? So test time dependent action, new position assignment, and notification, whatever on which object it has been created. And what is the created date? So it is indicating me yesterday's date. Moreover, what is the scheduled date? Oh no, what is the scheduled date? So it's going to be get executed ये 10 days before वाला है, फिर ये 5 days before वाला है, ये 2 days before वाला है, 1 day before, 0 day before, and 1 day after, like this. So it has been, ये ऐसे scheduled हुआ है. These are what the scheduled operations. Now, अभी यहाँ पे जो point आपको लिखना है, what the points, what I'm telling you, what you need to write down is that first of all, first thing, जो पहला point, लिखिए आप सभी लोग लिखिए इसको, कि every time dependent action, every time dependent action are stored inside a memory called as workflow queue. Workflow queue. Every time dependent action is being stored inside one of the memory called as workflow queue. Okay. Because you created 6 time dependent actions yesterday, now you could see there are 6 different operations inside workflow queues. Okay. So the pehla point kya likha aapne ki every time dependent action, they are stored inside a memory, a queue, inside a memory called as workflow queue. So every time dependent action is stored inside a memory called as workflow queue. Okay. And they are executed from this memory. They are executed from this memory. Now what is going to happen is that the copy 19th of December when this is going to be get executed, तो ये entry ना फिर यहाँ से हट जाती है. This will automatically be get deleted from this queue.
फिर 24th को जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी गेट डिलीटेड एवरी टाइम व्हेनेवर इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, दिस ऑपरेशन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी गेट डिलीटेड। ठीक है, ये ऑपरेशन अपने आप क्यू से हट जाता है, और जो ऑपरेशन अनएग्जीक्यूटेड है, जो जिसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, दे आर ओनली गोइंग टू बी गेट रिसाइड इनसाइड दिस पर्टिकुलर राइट। So yes, something this is every time dependent actions are actually, first of all, they are stored inside a memory called as workflow queue, and the second point, these are always executed whenever they are always executed from the queue, and whenever the time comes, when the scheduled time come and they are being executed, the entry is automatically get removed from the workflow. So this was your second point, right? Ab dekhiye, what is the reason, if they will ask you this now, let's come to the actual point ki what is the reason why this created and every time it is not edited, created and every time it is edited, this option, that this second number criteria cannot be applied for the time dependent. So what is the reason for that? So in short, please write down this statement. The reason is that if if Salesforce allows created and every time it is edited, if this criteria, if Salesforce allows this criteria, what created and every time it is edited to be used for time dependent actions, if Salesforce allows this criteria created and every time it is edited for the time dependent action, then it will going to create these items, then it will going to create duplicate entries, then it will going to create duplicate entries inside inside workflow queue, then it will going to create duplicate entries or redundant entries. Redundant matlab the entries, the data which is of no purpose, a data which has no purpose, no meaning. A useless data is something, a technical word for any useless data is called as redundant data. Okay. So it will create a duplicate entry or a redundant data inside workflow queue. तो वर्कफ्लो क्यू मेमोरी के अंदर redundant डेटा होता है, डुप्लीकेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स इट्स गोइंग टू क्रिएट. तो इसीलिए to avoid this, to avoid this to happen, Salesforce won't allow us to select, time to do. Salesforce won't allow us to perform time dependent actions on this particular period. So this is the reason for that. Okay. Once again, I'm repeating this question. First thing is that all the time dependent actions, they are executed from a memory called as workflow queue. And you are right now, you are saying this as a structure, as a tabular structure. So this is what a workflow queue and these many columns it's present, it's having. So it's indicating me what is the record name, what's the object name, what is the rule name, what is the schedule date, who has created this, what was the created date, and what's the automation type. So all your time dependent actions, all your time dependent action, they are going to be they are going to be get stored inside a memory called as workflow queue memory. They are executed from workflow queue. That means whenever the scheduled time has occurred, the particular rule is executed. And after execution, the entry has been automatically deleted from this memory, the workflow queue. Okay. Now Salesforce won't allow us to select created and every time it is edited for the time dependent action. The reason behind this is that if Salesforce allow us to do that, so if we are able to select created and every time it is edited for the time dependent action, if suppose we are able to select this, then it will going to create the duplicate entries or the redundant data inside this particular workflow queue. That is why Salesforce restrict us and we cannot do this, we cannot. So this is the reason. So this was the thing which was left yesterday. Okay. Now let me go further with the next topic, that is a cross object field update action. So let me first of all, show you what exactly is a field update. What does it means by a same object field update and what does it means by a cross object field update. Let me show you that. Okay. See, yesterday we have done one of the operation. ये जो हमारा आखिरी वाला है, post एक दिन बाद, तो हमने कल like this we have done. One day after. One day after, what we wanted a field update action. Okay. What kind of field update action? Position object. We created this workflow on the position object.
हमने ये जो वर्कफ्लो क्रिएट किया है, so we created this workflow on the position object. ये जो वर्कफ्लो हमने कल बनाया था, ये कौन सी ऑब्जेक्ट पे बनाया है? We have created this on the position object. And what we want, मतलब ये जो फील्ड अपडेट एक्शन है, इसके जरिए हम क्या चाहते हैं कि पोजीशन ऑब्जेक्ट में ही एक स्टेटस नाम की फील्ड है और उसकी जो वैल्यू है वो क्लोज्ड हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस तरह का अपडेट एक्शन है, तो आपका आंसर आएगा सर ये कुछ इस तरह का है। जहां पर मैंने वर्कफ्लो क्रिएट किया है पोजीशन ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन विच ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड दिस वर्कफ्लो, तो आंसर है पोजीशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट दिस वर्कफ्लो इज परफॉर्मिंग? दिस वर्कफ्लो इज परफॉर्मिंग अ फील्ड अपडेट एक्शन। ये जो वर्कफ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? इट्स परफॉर्मिंग अ फील्ड अपडेट एक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। Now, which field actually it is updating? It is updating the status field. Okay, fine, no problem. Now, status field belongs to which object? It again belongs to the position object. It again belongs to the position object. कुल मिला के इस पूरी कहानी का जो सारांश है, मतलब what is the moral of this story is that कि if a workflow, please listen this very carefully. If a workflow is created on an object, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, पोजीशन, हायरिंग मैनेजर, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, ध्यान से सुनिए आप। If a workflow is created on an object and it will update the field of the same object, मतलब एक वर्कफ्लो बनाया गया है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अगर वो फील्ड अपडेट कर रहा है उसी ऑब्जेक्ट की, मतलब एक ऑब्जेक्ट में जैसे स्टेटस है, लोकेशन है, नेम है, काफी सारी फील्ड्स हैं, उसमें से कुछ एक आध दो फील्ड को वो अपडेट कर रहा है, मतलब कुल मिला के जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है वो उसी ऑब्जेक्ट की है जिस ऑब्जेक्ट पे वर्कफ्लो क्रिएट किया गया है। Workflows are always created on the object. This we already know. So if a workflow is created on an object, कि एक workflow है जो कि किसी एक object पे बनाया गया है, it's created on one of the object like position, and it is updating a field inside the same object. उसी object के अंदर की field को ही update कर रहा है. So this kind of workflow, we call this to be the same object field update action. This kind of workflow we call this kind of field update action rather. This kind of field update action we call this to be a same object field update action. इस तरह का जो update action होता है उसको हम बोलते हैं same object field update action. ठीक है, इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसको कहा जाता है अपडेट, सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। और क्या होता है सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन? कि भाई अगर आपका वर्कफ्लो जिस ऑब्जेक्ट पे बनाया गया है, वर्कफ्लो उसी ऑब्जेक्ट की किसी फील्ड, एक या एक से ज्यादा फील्ड को अपडेट कर रहा है। जैसे इस केस में कल जो हमने ये देखा कि हमने एक वर्कफ्लो बनाया है कल जो कि पोजीशन ऑब्जेक्ट पे हमने बनाया है, and when it is updating the field, is actually updating the status field, right? तो ये स्टेटस फील्ड को अपडेट कर रहा है जो कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की ही एक फील्ड है, कि पहले इस फील्ड का स्टेटस था न्यू और बाद में जब ये इसे अपडेट कर रहा है तो इट्स एक्चुअली अपडेटिंग इट विद अनदर वैल्यू, जब ये इसे अपडेट कर रहा है तो ये इसको उसके एक वैल्यू से अपडेट कर रहा है। अलाइनमेंट करता हूँ, एंड इट इज उसको क्या कर रहा है, वो क्लोज कर रहा है, क्लोज्ड लाइक दिस। सो जो वर्कफ्लो कर रहा है वो बेसिकली ये काम कर रहा है। तो यहाँ इस तरह का ये जो ऑपरेशन आपने देखा, जहां पे वर्कफ्लो जिस ऑब्जेक्ट पे बनाया गया था उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड को वो अपडेट कर रहा है, इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह का फील्ड अपडेट एक्शन कहलाता है सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। क्लियर? क्लियर विथ एवरीवन? कम ऑन, प्लीज रिस्पॉन्ड मी, क्लियर विथ एवरीवन, बिकॉज इसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे बढ़ना है या फिर से एक्सप्लेन करना। यस, कम ऑन, प्लीज बी ऑन द चैट। क्लियर विथ दिस कंसेप्ट? ये और समझाने की जरूरत है मुझे, हाँ या ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो, तो ये था एक टाइप। अब हम चलते हैं एक दूसरी चीज के ऊपर जिसको कहा जाता है क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। ठीक है, जिसको कहा जाता है क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए अब आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझिए। नो नो गो विद दिस एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं।
देखिए क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन में क्या होता है, एक दूसरी तरह का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि मैंने वर्कफ्लो, आई क्रिएटेड अ वर्कफ्लो एंड अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। मैंने एक वर्कफ्लो बनाया है और किस ऑब्जेक्ट पे बनाया है, बाय द वे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये स्टेज डिस्क्रिप्शन चाइल्ड पेरेंट, डोंट लुक एट एवरीथिंग, बस आप उतनी चीजों पे ध्यान दीजिए जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये यूज केस में अभी हम देखने वाले हैं, तो फिलहाल इस पर आप उतना ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। I created a workflow on the opportunity object. Okay. When this workflow is going to be get fired, it's going to perform a field update action. मतलब जब ये workflow fire होगा, so when this workflow is going to be fired, what it's going to do? It's going to perform a field update action. This workflow is intended to perform a field update action. Okay. This workflow is intended to perform a field update action. ये जो वर्कफ्लो जब फायर होगा तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, फील्ड अपडेट एक्शन। लेकिन फील्ड की स्पेलिंग गलत है। एनीवेज, तो यहाँ पे जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है ना, यहाँ पे जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है वो फील्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट की नहीं है। ये फील्ड है ये वो फील्ड अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की नहीं है, रादर वो फील्ड किसी और ऑब्जेक्ट की। ये वर्कफ्लो कौन से ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हुआ है, दिस वर्कफ्लो हैज बीन क्रिएटेड ऑन द अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी ही की कोई फील्ड अपडेट करता तो मैं कहता कि इट्स अ सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, because the workflow is created on the opportunity object, it is updating a field inside the opportunity. I call this kind of operation to be a same field update action, something like that. But यहाँ जैसे कि मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि this workflow, although this workflow is created on opportunity object, this workflow is created on the opportunity object, but the field it is updating is from a different object. जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट एग्जांपल, इट कुड बी एनी अदर ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं अकाउंट हो, इट कुड बी कॉन्टैक्ट, हायरिंग मैनेजर, पोजीशन। व्हाट इंपॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड कि वर्कफ्लो क्रिएट हुआ है किसी और ऑब्जेक्ट पे और वर्कफ्लो फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी और ऑब्जेक्ट की। जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट की नहीं है जहां जिसका की वर्कफ्लो है। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी पर ये क्रिएट हुआ है तो ये जिस फील्ड को अपडेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी की नहीं है, रादर वो फील्ड किसी और ऑब्जेक्ट की, जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो जब इस तरह का कोई ऑपरेशन आप देखते हैं, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द वर्कफ्लो इज क्रिएटेड ऑन अ डिस्टिंग्विश्ड एक अलग ऑब्जेक्ट पे, द वर्कफ्लो इज क्रिएटेड ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इट्स अपडेटिंग अ फील्ड फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट, अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। So this kind of operation is called as, first of all, this kind of operation is called as cross object field update action. ठीक है, this kind of operation is called as cross object field update action, कि जहां पे वर्कफ्लो किसी और ऑब्जेक्ट पे बनाया गया था, जैसे it was created on the opportunity, it was created on the position, it was created on the hiring manager, candidate, and the field it is updating does not belongs to the same object, rather it belongs to a different object. मतलब जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है वो किसी और ऑब्जेक्ट की फील्ड है। जैसे अपॉर्चुनिटी पे ये वर्कफ्लो डिजाइन हुआ है, लेकिन ये फील्ड को अपडेट कर रहा है डिस्क्रिप्शन नाम की फील्ड की, और ये किसको बिलोंग करती है, अकाउंट को। तो ये अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर में एक फील्ड को अपडेट कर रहा है, तो इस तरह का ऑपरेशन कहलाता है क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर यू गेट द कांसेप्ट और नॉट। क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, कम ऑन, क्लियर हुआ, समझा व्हाट डज इट मींस बाय क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन? यस एवरीवन, कम ऑन गाइस। या, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, so now back to the concept, say using workflows you can perform both of the operation, that means workflow is capable to perform a similar object या फिर same object field update action, जैसे कि हमने किया भी है कल इसको, and even the workflow is capable to perform cross object field update action। आप workflow से और प्रोसेस बिल्डर दोनों से आप सेम ऑब्जेक्ट या क्रॉस ऑब्जेक्ट दोनों से आप ये फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलर ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन भी आप कर सकते हो, और आप चाहें तो क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन whenever you perform this cross object field update action, there are certain limitations, there are certain considerations, ठीक है, that you must be aware of। अगर आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर दोज ऑब्जर्वेशंस? कि देखिए, सबसे पहला, बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी एसोसिएटेड इन द मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। मतलब जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो
जैसे अकाउंट और अपॉर्चुनिटी, अकाउंट और कॉन्टैक्ट, hiring manager and position and candidate. So they must have a master detail relationship. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है, then you cannot perform cross object field update action. पहली चीज, ठीक है। Using the workflows, फिर से सुन लो मेरी बात, using the workflows, whenever you are performing the cross object field update action, there are two considerations. बस दो ही बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। पहली चीज, द रिलेशनशिप टाइप, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप मस्ट बी मास्टर डिटेल, क्योंकि अगर इफ द रिलेशनशिप टाइप इज लुकअप, we cannot perform cross object field update action using workflows, ठीक है। Okay, a second thing is that whenever you are performing this cross object field update action, you can update, the direction of the updation should be always from the child to parent, always from child to parent. That means, what does it mean, child to parent? Your workflow should always be fired on the child object. Workflow should always be created on the child object. Workflow should always be created on the child object, and it will update a field. It will update a field inside the parent object. ठीक है? Workflow must always be created on the child object. ठीक है? Workflow must always be created on the child object, and it will update a field of the parent. Parent की field को update करें. ठीक है? Workflow किस पे create होना चाहिए? Child पे. Field कहाँ की update होनी चाहिए? Parent. इसको आप उल्टा नहीं कर सकते. उल्टा करने का मतलब, आप वर्कफ्लो को पेरेंट ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करके, वर्कफ्लो को पेरेंट ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करके चाइल्ड को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। वर्कफ्लो हमेशा क्रिएट होगा चाइल्ड पे। फील्ड को जिस फील्ड को वो अपडेट कर रहा है, वो फील्ड हमेशा कहाँ की रहेगी? पेरेंट, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, चाइल्ड टू पेरेंट। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, कब? जब आप वर्कफ्लो को यूज करके क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो, अब अगर आपकी ये समझ में आ गया हो तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पर रेस करना चाहूंगा। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बाद में हमको प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट करना है, और काफी सारी ऐसी चीजें आप देखने में पाओगे कि प्रोसेस बिल्डर काफी पावरफुल है एज कम्पेयर टू, और ओवर काफी फ्लेक्सिबल भी मिलेगा आपको। तो अभी जैसे आपने देखा, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गई हमारे कि ठीक है, हम क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, बट देन देयर आर टू रिस्ट्रिक्शंस। पहली बात तो रिलेशनशिप का टाइप मास्टर डिटेल ही होना चाहिए, और दूसरी बात, डायरेक्शन मस्ट ऑलवेज फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, राइट। अच्छा, आप ये सेम चीज, अब दूसरी बात सुनिए आप, ठीक है। आपके सेम चीज यानी क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, दिस आल्सो कैन बी डन विद द प्रोसेस बिल्डर्स, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोसेस बिल्डर से ये चीज करते हैं ना, तो हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। और ये मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज अभी कैसा पॉइंट निकला है तो मुझे बताने दीजिए। तो यू कैन इवन परफॉर्म दिस क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन विद द प्रोसेस बिल्डर। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि प्रोसेस बिल्डर डज नॉट इम्पोज यू एनी रिस्ट्रिक्शन, नो नो नो, वो हमारी नानी का घर है, कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांटेड टू डू ओवर देयर। वहां पे आपकी रिलेशनशिप का टाइप अगर मास्टर डिटेल है तो भी चलेगा, लुकअप है तो भी चलेगा। even though the two objects are not even related, there is no such relationship between two objects. कोई रिलेशनशिप नहीं है, neither master nor lookup, तब भी आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, even though the objects are not at all related to each other. इतना पावरफुल है आपका प्रोसेस बिल्डर। दूसरा, आप चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड दोनों तरह से आप क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे? प्रोसेस बिल्डर, वर्कफ्लोज पे नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, वर्कफ्लो बार बार देखो, हम कहीं ना कहीं इस एक इंप्रेशन के साथ चल रहे हैं कि ऑल्दो वी आर लर्निंग दिस, बट इन द रियल टाइम वी विल नेवर यूज दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज समथिंग इन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एंड इन द Salesforce वी आर इंटेंडेड टुवर्ड्स लाइक ऑलवेज गो विद द लेटेस्ट थिंग, ठीक है। तो अभी जैसे 2023 के बाद तो वर्कफ्लोज इवन प्रोसेस बिल्डर आर आल्सो गोइंग टू बी गेट आउटडेटेड। तो भले आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन पढ़ना इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते अभी इस टॉपिक को। एट दिस स्टेज यू शुड नो एवरीथिंग, बिकॉज आपको इंटरव्यू में पूछा जाना है, आपको जवाब देना, उसी के बेसिस पे आपके सिलेक्शन होंगे। बट इन द रियल टाइम वी नेवर यूज दिस, अदर प्रोसेस बिल्डर भी अब नहीं करते हैं हम लोग। जब से पता चला कि प्रोसेस बिल्डर जाने वाला है, वी हैव स्टार्टेड या तो फ्लोज पे शुरू किया है, और या फिर ट्रिगर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
तो अभी प्रोसेस बिल्डर को भी थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं, जहां जहां हो सकता है वहां अवॉइड ही कर रहे हैं उस चीज को, ऐसा चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में प्रोसेस बिल्डर ज्यादा पावरफुल होता है, और ये हम देखने वाले हैं। चलो, तो अब इसको एक क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट के लिए एक यूज केस जो है देख लेते हैं। आइए देखिए भाई, वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर अ वर्कफ्लो रूल ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट, और हम ये चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में एक स्टेज नाम की फील्ड होती है। मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ, बस पहले आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लो। So in the opportunity object, there's a field called as stage, right? Now I wanted to copy this value of the stage field of the opportunity to the associated accounts record description. ये इसका मतलब क्या है? चलो मैं बताता हूँ. Let's go to the opportunity object. देखिए opportunity object पे, if I go to this opportunity object, एक field होती है stage नाम की सी. काफी अलग अलग वैल्यूज हैं. दिस इज अ पिक लिस्ट वैल्यू, पिक लिस्ट फील्ड है, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, नीड्स एनालिसिस, value proposition, IDs and perception, whatever, closed with lost, closed with one, negotiation, under review process, whatever. What we wanted over here is that, चलो अब मैं आपको accounts पे लेके चलता हूँ. Let me open any of the account like Merck Corporation, and now we can see that for this account Merck Corporation, we have an associated opportunity also, right? Okay, related list में दिख जाता है आपको. You can see that for this Merck Corporation, I could see that there's a related opportunity record. Which record? Bobby J. Williams, right? And what is the value of a stage for this record? Prospecting. Now, what I wanted to do is that I wanted to make this happen, that opportunity object, opportunity object पे अगर मैं इसकी स्टेज पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे आई कुड सी दैट इसका वैल्यू क्या है, प्रोस्पेक्टिंग. दिस शुड बी कॉपीड टू द अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन. अकाउंट में डिस्क्रिप्शन नाम की फील्ड, ठीक है. यहाँ पे ये सेम वैल्यू जो है ना, आई वांटेड दिस टू बी गेट कॉपीड ओवर. मतलब नाउ लेट्स सी दिस, whatever is the value of opportunities stage, अपॉर्चुनिटी की स्टेज का जो भी वैल्यू है, आई वांटेड द सेम वैल्यू टू बी गेट कॉपीड. I wanted the same value to be get copied to the description field of account. The same value. I wanted this value to be get copied from here to here. ठीक है? This is what I wanted. अभी ये कैसे देखो, अभी तो मैंने मैनुअली कर दिया ना. If I now make any changes over here, if I make, let's go to the Bobby J. Williams record. Presently the stage is prospecting. Let me let me edit it and make it qualification. Save it. Save it. Now see, let's go back to this and refresh this account. So here now I could see that the stage value has become qualification, but the description value is still having this old value, prospecting. So I here wanted to have an kind of automation. मैं यहाँ पर एक automation चाहता हूँ, जहाँ पे कि जब कभी भी मैं opportunity object की stage field में कोई भी बदलाव लाऊं, I change this stage value to any of the value. I wanted this to be get copied to the description field of account. Opportunity, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, हिंदी में सुन लो. Opportunity object की stage field related ना, ये related है आपस में, ऐसा नहीं है. मतलब I'm just talking about two related records. ये एक account record है Merck Corporation नाम का, और ये उसका related contact है, ये related opportunity है. तो इस अकाउंट की रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में स्टेज नाम की एक फील्ड होती है. एंड व्हेनेवर दिस वैल्यू ऑफ स्टेज इज बीइंग चेंज, अच्छा मैंने कहा था हिंदी में बताऊंगा, ठीक है. तो मैं जब भी इसको क्वालिफिकेशन सॉरी जब भी मैं इसे चेंज करूं, मैंने किसी और वैल्यू से चेंज करूं, तो मैं ये चाहता हूं कि व्हाट वी वांट ओवर हियर इज दैट कि हम इसको डिस्क्रिप्शन पे कॉपी करें. एवरी टाइम दिस हैज बीन चेंज, जब भी हम इसको चेंज करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन अकाउंट में जो डिस्क्रिप्शन फील्ड होती है वहां पे ये कॉपी हो जाना चाहिए. दैट मींस बोथ ऑफ देम शुड हैव द सेम वैल्यू, कि आपके अकाउंट का डिस्क्रिप्शन एंड द अपॉर्चुनिटी स्टेज शुड हैव द सेम वैल्यू, शुड हैव द सेम वैल्यू.
तो आप मुझसे पूछो कि सर इसकी सब चीजों की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाई एट ऑल यू आर टीचिंग दिस, क्यों करना ही है, मतलब कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा। आप मुझसे सोचो कि ये सब क्या है सर, क्यों बता रहे, क्यों आप बता रहे, कभी ऐसा थोड़ी ना हो सकता रियल टाइम में। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। First of all, it requires me to log in. One sec. Okay, just give me a sec. मैं पहले log in कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको a little bit credentials hide करना है मुझको, इसलिए I have stop this sharing. ये यूज केस आप क्यों पढ़ रहे हो रियल टाइम पे, क्या कभी ऐसी कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है क्या, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, दैट इज वाई। चलो अब देखते हैं इसको। देखो यार, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑरेंज काउंटी यूनाइटेड पे, कनेडियन क्लाइंट। ये उसका एग्जिस्टिंग सीआरएम है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एयरटेल, ठीक है। ये पिछले 8 सालों से ये सीआरएम यूज कर रहे हैं यार, ठीक है। इसमें उनका सारा डेटा मेंटेन होता है। आई शो यू सम मोर थिंग, कुछ मैं एकदम रियल टाइम की चीजें बता रहा हूँ आप। यूनाइटेड वे पर लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। अभी खैर डिस्कवरी स्टेज है प्रोजेक्ट का, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग अंडर डिस्कशंस, लाइक। तो अभी जो कुछ चीजें, जो इनिशियल फाइंडिंग्स जो सामने आई है नो, बेस्ड ऑन दैट फाइंडिंग, जो मेरे ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एंड लाइक सी presently they are using something called as Airtable, and few of the things they are actually implemented in AWS. Now what they want, मैंने कहा था ना शुरुआत में जब मैं आपको इंट्रोडक्शन ले रहा था, मैंने कहा था देखो, people are migrating their application, their business intelligence towards Salesforce. They were using this Airtable from probably 7 to 8 years, and few of the components have been integrated with AWS. Now they entirely wanted this whole things to be get migrated to Salesforce. मैंने काफी शुरुआत में जब आपकी बात शुरू हुई थी तो मैंने ये एग्जांपल पुट अप किया था कि आजकल जो एक दौर चालू है जिसमें माइग्रेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कि लोग जो जिस किसी टेक्नोलॉजी पर थे, नाउ दे वांटेड टू कम टू क्लाउड, पहली बात तो ये। दूसरा, जब क्लाउड पे भी आना चाहते हैं तो क्लाउड पे कौन लोग हैं, क्लाउड पे AWS भी है, क्लाउड पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी है, और क्लाउड पे सेल्सफोर्स भी है। जब ये तीनों को एक साथ खड़ा किया जाता है तो सेल्सफोर्स का ही कद सबसे लंबा है। सो दैट इज वाई पीपल आर माइग्रेटिंग देयर बिजनेस। ये पहला फैक्ट है जो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता था विद द इनिशियल फाइंडिंग्स, जो मतलब देखो, जो मॉड्यूल्स हमको बना के दिया जिन लोगों ने ना, दे टोल्ड अस दिस थिंग कि these guys they have 5 different types of account record and 3 different types of contact records, ठीक है। we must provide him such kind of provision that they should they should enter these 5 kinds of account। उसे बताता हूँ मैं आपको। What are types? Companies, communities, people, prop, client, and service provider. These are the 5 different types of account. See over here: clients, people, service provider, communities, companies, people, prop. These all are the type of these all are type of account they are maintaining. Now अब ये कितना डिफिकल्ट है उनका आप खुद देख सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेल शीट, बस और कुछ नहीं है ये, है ना, ये इट्स अ सिंपल एक्सेल शीट और कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल दे हैव मेक दिस एंट्री, कम्युनिटीज में एंट्री किया उन्होंने कैम्ब्रिज अपार्टमेंट विद सिटी सिलेक्ट किया, मैनेजमेंट कंपनी ओनर। दिस इज द काइंड ऑफ सीआरएम दैट दीज गाइज वेर यूजिंग, ठीक है, ये वो यूज कर रहे थे। अब आप सोच सकते हो कि ये कैसा दिखता है, दिस इज जस्ट एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल और कुछ नहीं है ये। कलरफुल एक्सेल बोल दो इसको, ये कोई सीआरएम नहीं है। एंड व्हाट वी हैव बिल्ट फॉर देम, अब हमने जब इस पर शुरुआत किया तो हाउ वी हैव स्टार्टेड, लेट्स गो टू द अकाउंट आइटम। जो मतलब जिस मॉड्यूल पे अभी मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव दिस डॉक्यूमेंट ओनली रिलेटेड टू अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। माय रिस्पांसिबिलिटी विद दिस टू ऑब्जेक्ट ओनली। सो व्हेन दिस इज गोइंग टू बी गेट डिप्लॉयड, अभी नहीं हुआ डिप्लॉय, आगे चल के होगा, ठीक है। अगर ऑल अकाउंट पे जाता हूँ मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए अकाउंट्स के टाइप है: पीपल, प्रॉप, कम्युनिटी, कंपनीज, क्लाइंट, एंड एवरी टाइप, every these are the types, how these people can enter this। let's go once again। तो मैं इसके लिए VF बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको। as soon as you press this new button,
something is going to be happen. यहाँ पे एक visual force page create होगा. So at the beginning itself, it will ask you to select the account type. ठीक है. These are the 5 different types of account. अब देखो ये इंटरफेस देखो और आप ये इंटरफेस देखो. ये क्या दिख रहा है आपको? ऐसा टैप 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 दिख रहा है. And see how does Salesforce looks like. Companies, as soon as the company is selected, सारी companies related fields जितनी वो pop up होगी. मतलब if I go to companies, you know, if I go to this companies, if they wanted to enter, first thing they would like to enter is the name. तो यहाँ पर name ऐसे है और यहाँ पे name ऐसे. ठीक है. Second is like some fields are still yet to be developed, probably जो डेवलप हुई है, जो नहीं हुई है, मैं अभी बताता हूँ कि आप ये मेरा इंटरफेस बीच में आ जाता है. हाँ, ठीक है. लाइक इट वाज लाइक पीपल एंड द टाइप, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको. नेटवर्क स्टेटस, अब देखो यहाँ टाइप, देखो सिलेक्ट लाइक नेटवर्क स्टेटस लाइक दिस. ये इंटरफेस अभी अंडर डेवलपमेंट है. I just wanted you to understand why people are migrating towards the Salesforce. When they select community, they are going to get this kind of interface, right? If they, you know, if they go to the contact and they wanted to new contact, enter the new contact. Let's see. So मैंने new button override कर रखा है, my own interface. There are 3 different types of this. You know, if they select the people service, they are going to get a different kind of interface. चलो, तो ये कहानी. इससे आपको ये पता चलता है कि why the people they wanted to, you know, migrate towards the Salesforce. Salesforce वो एक ऐसा इंटरफेस दे सकता है. ये तो क्लासिक है, अभी लाइटनिंग पे लेके जाऊंगा तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा. अभी तो मैंने जस्ट एक अप्रोच दिया, ये पहला अप्रोच है मेरा विद द विजुअल फोर्स पेज. अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है. दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड. देखो मैं समझाता हूँ काम कैसे चलता है. दे गिव अस दिस रिक्वायरमेंट. उन्होंने मुझको ये रिक्वायरमेंट दी, अप्रोचेस मांगे. मैंने पहला अप्रोच दिया. पहला अप्रोच क्या दिया है? विद दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड सो फार. ये दिया है मैंने. एक अप्रोच और सबमिट किया मैंने आपको, वो भी बता. ठीक है. वन मोर, एंड लाइक आई हैव सबमिटेड वन मोर थिंग. लेट मी शो यू दैट आल्सो. कम्युनिटी पे लेके गया हूं मैं इसको. ठीक है. और कम्युनिटीज पे लेके जाने के बाद में एक्चुअली आई हैव डेवलप्ड समथिंग लाइक दिस आल्सो, कि अगर उनको ऐसा नहीं तो ऐसा देखना चाहते हैं, इफ दे वांटेड टू सी इट लाइक दिस. अब ये बनने का है बिकॉज आई जस्ट हैव स्टार्टेड विद दिस. ठीक है. तो यू नो दे कुड गो विद द कम्युनिटी आल्सो. हम इसको कम्युनिटी पे भी लेके जा सकते हैं. एंड देन वी कुड डेवलप द इंटरफेस अकॉर्डिंग टू देयर. तो ये लाइटनिंग पे जाने वाला है. दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन लाइटनिंग, अगर मैं इसे कम्युनिटी पे लेके जाता हूँ. तो हियर व्हाट आई हैव सबमिटेड देम, मैंने अपने दोनों अप्रोचेस सबमिट करे. इफ यू वांटेड टू डू मी दिस इन द क्लासिक, I can do it with you know, I can do it with this. कहाँ गया? I can do it with the visual force page और triggers वगैरह लगा के. अगर आप मुझे लाइटनिंग पे बोलते हो तो फिर लाइटनिंग पे ठीक है, we could bring it to the lightning. वहाँ पे मैं components डिजाइन कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये इस तरह से आपको काम करना पड़ता है. You know, you need to submit the approaches. उसके बाद में अभी जैसे कि ये वीकेंड था, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ. Probably in the next week we will see कि इसको कहाँ लेके जाना है. Whether we wanted this in the classic part with few of the components of the lightning, or we entirely wanted this project to be built on the lightning. क्योंकि इसको ऐसा देखना पसंद करेगा क्लाइंट या उसको लाइटनिंग पे देखना पसंद करेगा, वो तो उसकी नजर का है, राइट. तो इस तरह से, तो ये देखो डेवलपमेंट ऐसे चलता है बॉस, स्टेप बाय स्टेप चीजें ऐसे स्टार्ट होती है और बहुत वक्त लगता है. अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि वी स्टार्टेड विद दिस प्रोजेक्ट इन दिस नवंबर. ये आने वाले नवंबर तक चलने वाला है, या एटलीस्ट मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर. एक प्रोजेक्ट कम से कम 7 से 8 महीने चलता है. ठीक है. उसके बाद भी चलता रहता है. तो इन दिस वे वी एक्चुअली यू आर गोइंग टू वर्क इन रियल टाइम, ऐसे काम करने वाले. अब मैं आपको रिक्वायरमेंट की बात जो मैं बता रहा था कि यहाँ जिसमें आपको समझा रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी की स्टेज पे चेंज करोगे तो अकाउंट का डिस्क्रिप्शन चेंज होना चाहिए. अब और ये क्या उठपटांग पढ़ा रहे हो सर आप हमको, ऐसे क्या जरूरत पड़ सकती है. ठीक है. आई शो यू समथिंग, आई शो यू समथिंग. सी आई थिंक दिस वाज द people prop. Yeah, probably. एक अकाउंट है जिसका टाइप है people prop and there is a field. I'm telling you, there is a field. क्या? एक फील्ड है इसमें कंपनी नाम की. ठीक है. कंपनी नाम की एक फील्ड है. एक अकाउंट है, इसका नाम है Zoom1. इसके अंदर एक फील्ड है कंपनी नाम की. देखो अगर आपको ये मेरा एग्जांपल समझ गया ना, तो आप बिल्कुल रियल टाइम के लायक हो गए, क्योंकि ये एडमिन का पार्ट है. वैसे मैंने थोड़ा सा ट्रिगर लगाया इसमें, वो अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ. तो एक अकाउंट का रिकॉर्ड है जिसका टाइप है पीपल प्रॉप, और इस पीपल प्रॉप के अंदर एक फील्ड है कंपनी. चलिए
पीपल प्रॉप ये उनके डेटाबेस से उठाया मैंने, ठीक है। पीपल प्रॉप के अंदर एक फील्ड है कंपनी नाम की, आओ दिखाता हूँ। पीपल प्रॉप के अंदर एक फील्ड है कंपनी नाम की, देख लो। पीपल प्रॉप टैब है, फील्ड का नाम है कंपनी, लिंक टू कंपनीज, ठीक है। नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, यहाँ से नहीं समझा कोई दिक्कत, ठीक है। पीपल प्रॉप में एक फील्ड है कंपनी, ओके। कंपनी का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बनाया मैंने उसको ऐसे कि पीपल प्रॉप में आप चाहिए कंपनी, कंपनी एक लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको, क्या ये आपका बैच, लेट मी टेक यू टू दिस। देखो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल टाइम की कुछ चीज बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। पीपल ऑल अकाउंट्स और let me take you towards the company. Type is company. Okay. And title. People prop should have the same value of engagement level. Now let's understand this. ठीक है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। या होना क्या है, आई टेल यू। जैसे ही आप यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करो, ठीक है, एज सुन एज यू सिलेक्ट द कंपनी, तो कंपनी के अंदर में एक फील्ड है, कंपनी के अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट कुछ और है, एक सेकेंड। एंगेजमेंट लेवल नाम की एक फील्ड है, फाइंड आउट एंगेजमेंट लेवल, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कोई रिकॉर्ड देखता हूँ जहां पे ये ब्लैंक ना हो। तो type all accounts, let me show you something, engagement level, okay, let me copy this, ठीक है। एक कंपनी है देखो जिसका नाम है अफोर्डेबल अपार्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और इसका एंगेजमेंट लेवल आपको क्या नजर आ रहा है, इंक्वायरी, इंक्वायरी याद रखो, ठीक है, इंक्वायरी। नाउ व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, एज सून एज आप जब कंपनी को है ना, जो सिलेक्ट अ कंपनी, जब भी आप कंपनी सिलेक्ट करो, ठीक है, आप कंपनी सिलेक्ट करो, जैसे मैं ये कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सी, अभी आप यहाँ पे नोटिस करो, यू नो, आई वांटेड एवरी वन ऑफ यू नोटिस ओवर हियर, आई वांटेड एवरी वन ऑफ यू टू नोटिस ओवर हियर, क्या होना चाहिए, अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप कोई कंपनी सिलेक्ट करो, उसका एंगेजमेंट लेवल यहाँ पे अपने आप आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक दूसरी कंपनी थी, ये उसका एंगेजमेंट लेवल था, अब मैं एक नया कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम सिलेक्टिंग दिस कंपनी, ठीक है। आई एम सिलेक्टिंग दिस कंपनी एंड आई एम सेविंग दिस रिकॉर्ड, ठीक है, आई एम सेविंग दिस रिकॉर्ड। तो मैंने जो कंपनी सिलेक्ट किया है, कौन सा सिलेक्ट किया है, अफोर्डेबल, उसका अफोर्डेबल ये कंपनी, उसका स्टेटस यहाँ अपने आप आ गया। तो दिस शुड हैपन। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये यही चीज है कि जब आप कोई कंपनी सिलेक्ट करो, जब आप कोई इस फील्ड का कुछ सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली ये वाली फील्ड की वैल्यू अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जानी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैंने इसको वर्कफ्लो से नहीं बनाया है, मैंने दूसरी तरीके से बनाया इसको, ठीक है। लेकिन सेम इज विद दिस। और कोई है क्या मेरे पास में, एम्बेसडर, कौन सी कंपनी है, सिस्को, चलो। तो देखो अब मैं इसको फिर से चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि आई एम चेंजिंग दिस टू सिस्को। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ सिस्को से, आई एम चेंजिंग दिस विद सिस्को, और मैं ये कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ इंक्वायरी दिख रहा है मेरे, आई एम जस्ट सेविंग दिस, मैं इसको सेव करता हूँ, वो वैल्यू अपने आप चेंज हो जानी चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट, एंड नाउ इट इज एक्चुअली बीइंग चेंज टू एम्बेसडर। तो एज पर कंपनी इस फील्ड के हिसाब से ये फील्ड अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। दिस वाज द ये, और ये यहाँ से समझना पड़ता है कि आप जो कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, उसका एंगेजमेंट लेवल अपने आप यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी जो आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, इट्स अ सिमिलर, और ये बिल्कुल रियल टाइम रिक्वायरमेंट समझाता हूँ, थोड़ी बहुत 19-20 रहती है हर एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया। ये है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, तो आप जो पढ़ रहे हो ना, वो काफी हद तक रियल टाइम है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू राइट
कि जब भी कोई स्टेज में जाके चेंजेस करेगा यहाँ पे, whenever someone changes, make the changes over here, ये चेंज मेरे को यहाँ पे दिखाओ। चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे। दिखने कहाँ चाहिए? यहाँ पे। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? अपॉर्चुनिटी का फील्ड है। ये कहाँ की फील्ड है? अकाउंट का। दो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं अपॉर्चुनिटी में, रिफ्लेक्ट होने चाहिए अकाउंट के अंदर। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। ठीक है, तो आप ये जो पढ़ रहे हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह आप देख चुके हैं। ये रियल टाइम पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी हिट करेगा, कभी ना कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी व्हेन अकॉर्डिंग टू दिस यू नीड टू मेक चेंजेस ओवर हियर। दिस बिलोंग्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, दिस बिलोंग्स टू अनदर ऑब्जेक्ट, क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। बट इसको वर्कफ्लो से नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स मैंने इसको प्रोसेस बिल्डर से भी नहीं किया, बिकॉज आई नो कि आज मैं कर दूंगा 2023 में मेरे को चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट, मैंने यहाँ पे ट्रिगर लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने ट्रिगर लिखा है। ठीक है, चलो तो अब ये चेंजेस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस तो समझ में आ चुका होगा इस चीज का। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं मैं। लेट मी क्रिएट अ वर्कफ्लो। सो लेट्स गो टू द सेटअप मेनू, क्रिएट वर्कफ्लोज एंड अप्रूवल एंड देन वर्कफ्लो। एक नया रूल, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट पे बनाना है? अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब भी चेंजेस हो अपॉर्चुनिटी पे तो आई वांटेड दिस वर्कफ्लो टू बी गेट फायर। तो ये वर्कफ्लो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। सिंक अपॉर्चुनिटी स्टेज टू अकाउंट डिस्क, मतलब डिस्क्रिप्शन, या फिर ये दोनों में से कोई भी जो आपको देना हो। अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज वैल्यू है उसको, या यहाँ पे अच्छे से लिख सकता हूँ मैं, कॉपी दी stage value to related account description description field. That is here you could अच्छे से देख सकते हो आप। Whenever created and every time it is edited, so this here I wanted to go with the second criteria. चाहे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो या किसी पुराने रिकॉर्ड में एडिटिंग हो, तो मुझे टाइम डिपेंडेंट एक्शन नहीं बना सकता। वैसे भी मैं टाइम डिपेंडेंट पे जा ही नहीं रहा हूँ। दिस आई वांटेड टू बी हैपन इमीडिएटली, कि जब भी यहाँ पे कोई चेंजेस हो, व्हेनेवर समबडी गो एंड चेंजेस दिस बॉबी जे विलियम्स, तो आई वांटेड दिस टू बी गेट रिफ्लेक्टेड इन द वर्क वेरी इमीडिएटली। तो मैं वैसे भी टाइम डिपेंडेंट एक्शन तो चाहता ही नहीं हूँ, तो व्हाट देयर इज नो प्रॉब्लम विद गोइंग विद द सेकंड क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रूल कंडीशंस, व्हाटएवर यू वांट। तो रूल कंडीशंस में here I would like to use one of the formula. एक formula मैं use करना चाहूँगा, probably I have written this. Okay, rule conditions. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपॉर्चुनिटी की जो स्टेज वैल्यू है, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस एवरीथिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में जो स्टेज वैल्यू है, दिस शुड नॉट इक्वल्स टू नो। ये मैं कंडीशन रख रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ, दिस शुड नॉट इक्वल्स टू नो। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, शुड नॉट इक्वल्स टू नो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की स्टेज। अपॉर्चुनिटी स्टेज शुड नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, दिस शुड नॉट इक्वल्स टू नल। सिलेक्ट। तो अभी रूल कंडीशन मेरी बनके तैयार है। नाउ लेट्स मी ऐड द एक्शन। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? क्या मैं नया टास्क चाहता हूँ? क्या मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ? नो, आई वांटेड टू अपडेट द फील्ड। मैं फील्ड अपडेट चाहता हूँ। हाँ, वो अलग है कि मैं अपॉर्चुनिटी में नहीं चाहता, कहीं और चाहता हूँ। ठीक है, वो मैं देख लूंगा कहाँ चाहता हूँ। सो अपडेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन, दिस इज द नेम व्हाट आई एम गोइंग टू गिव। अब यहाँ पे देखो, फील्ड्स टू बी अपडेटेड। अब मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि आपको किसको अपडेट करना है? क्या आपको अपॉर्चुनिटी के अंदर अपडेट करना है, या आपको अकाउंट में डिस्क्रिप्शन फील्ड को अपडेट करना है? अगर कोई चेंजेस अपॉर्चुनिटी में हो रहे हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी के चेंजेस से सिर्फ ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी में स्टेज वेज अगर चेंज होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन कहां पर है? अकाउंट में। डिस्क्रिप्शन कहां पर है? अकाउंट में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फील्ड अपडेट करना है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की अपडेट करना है या अकाउंट की? अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की या अकाउंट की? तो हमें अकाउंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे आपकी अपॉर्चुनिटी अकाउंट की सारी फील्ड, जिसमें से मुझे काम है
डिस्क्रिप्शन, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके चीज अपने आप, तो अकाउंट डिस्क्रिप्शन को आप किसके साथ अपडेट करना चाहते हो? ब्लैंक वैल्यू के साथ? नहीं, ब्लैंक नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ हो। क्या चाहता हूँ मैं? हम चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी का जो स्टेज वैल्यू है दैट शुड गेट कॉपीड टू डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपने आप कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है, ये अपने आप कॉपी हो जाए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी, दिस फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करना मैं आपको बताता हूँ। सो यूज अ फॉर्मूला, ठीक है, शो फॉर्मूला एडिटर, ठीक है। कौन सी फील्ड आपको इंसर्ट करना है? इंसर्ट अ फील्ड, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की स्टेज फील्ड, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट की स्टेज फील्ड, आप सिलेक्ट करो वो फील्ड, ये फील्ड मैं कॉपी करना चाहता हूँ, इंसर्ट। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना सा दूंगा तो मेरे को एरर मिलेगा, चेक सिंटैक्स करिए आप, आपको एरर मिलेगा यहाँ, एरर, बिकॉज ये एक पिक लिस्ट है। कोई भी पिक लिस्ट, देखो आप, ये एक पिक लिस्ट है, दिस इज एक्चुअली अ पिक लिस्ट फाइल। कभी भी हम पिक लिस्ट पर, एक नई चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको, कभी भी आप पिक लिस्ट को अगर ट्रांसफर करते हो, जैसे स्टेज क्या है, स्टेज एक पिक लिस्ट है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर आप पिक लिस्ट की वैल्यू ट्रांसफर करना चाहते हो, आप ये चाहते हो अगर ये प्रोस्पेक्टिंग है तो प्रोस्पेक्टिंग जाए अकाउंट पे, कि अगर ये क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन ये वैल्यू जाए अकाउंट के डिस्क्रिप्शन पे। आप चाहते हो कि अगर ये नीड एनालिसिस है, नीड एनालिसिस की वैल्यू जाए अकाउंट के डिस्क्रिप्शन पे। तो जब भी आप पिक लिस्ट के साथ डील करते हो, तो पिक लिस्ट की वैल्यू ट्रांसफर करने का एक फॉर्मूला होता है कि ये अगर पिक लिस्ट है, स्टेज नेम अगर ये एक पिक लिस्ट है, तो आपको इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है और उसके सामने लिखना है टेक्स्ट। मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड, ये जो पर्टिकुलर पिक लिस्ट है, इसमें जो कुछ भी सिलेक्ट हुआ है उसका टेक्स्ट ट्रांसफर करो, उसका टेक्स्ट ट्रांसफर करो। स्टेज नेम क्या है? पिक लिस्ट है, और उसमें जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट ट्रांसफर करो। तो टेक्स्ट नाम का आपको यहाँ पे फंक्शन यूज करना है, ये सारे फंक्शंस हैं, इसमें से एक फंक्शन मैंने यूज किया है टेक्स्ट नाम, ठीक है, टेक्स्ट, ये फंक्शन मैंने यूज किया है, तो ये आ जाता है यूज करते करते, डोंट वरी। अब अगर मैं एक बार फिर से चेक सिंटैक्स करता हूँ कि मेरे सिंटैक्स में फॉर्मूला में कोई गड़बड़ है क्या, तो अब ये बोल रहा है नो एरर्स, ठीक है। तो क्योंकि ये पिक लिस्ट है, अगर ये पिक लिस्ट नहीं होती, कोई नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड होती, डेसिमल फील्ड होती, डेट फील्ड होती, तो हम डायरेक्ट कर सकते, बराबर है। लेकिन क्योंकि एक पिक लिस्ट है, तो पिक लिस्ट में से क्या भेजना है? सारी वैल्यू तो भेजनी नहीं है, जो सिलेक्टेड वैल्यू उसका टेक्स्ट भेजना है, इसलिए टेक्स्ट यहाँ पे इसमें लिखा गया है। सो लेट मी सेव दिस, ठीक है, ये बन के तैयार है मेरा फील्ड अपडेट एक्शन, क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन है। इसको अभी मैं डन करता हूं और एक्टिवेट करता हूं, क्योंकि वर्कफ्लोज अपने आप एक्टिवेट नहीं होते हैं, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। चलिए, अभी एक्टिवेट हो चुका है, अब ये काम करेगा। कैसे काम करेगा? आई शुड मेक सम ऑफ द चेंजेस इन द रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। तो मैं चलता हूँ वापस से हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, लेट मी वंस अगेन रिफ्रेश दिस। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन है प्रोस्पेक्टिंग, जबकि इसका रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बॉबी जे विलियम्स पे ये क्वालिफिकेशन है। तो मैं काम करता हूँ, बॉबी जे विलियम्स का रिकॉर्ड ओपन करता हूँ एंड लेट्स मेक सम चेंजेस ओवर। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा, क्वालिफिकेशन से इसको क्लोज्ड, परसेप्शन एनालिसिस कर दे। Now, as soon as I make this changes and I save this, तो हमने जो वर्कफ्लो बनाया है उसका क्राइटेरिया है क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट इज एडिटेड। या तो कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट हो या कोई नया पुराने रिकॉर्ड में अपडेटेड हो, दोनों सूरतों में हमारा वर्कफ्लो फायर होगा। और जैसे ही हमारा वर्कफ्लो फायर होगा, जब मैं सेव करूंगा, तो वो क्या करेगा कि यहाँ इस फील्ड को, डिस्क्रिप्शन को, एक तो ये बॉबी जे विलियम्स की स्टेज को भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ ये वैल्यू परसेप्शन एनालिसिस, ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। आइए देखिए, सेव हो गया, बिल्कुल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं देखता हूँ स्टेज की वैल्यू परसेप्शन एनालिसिस नजर आ रही है मुझको। यहाँ चलता हूँ इसको, अभी ये प्रोस्पेक्टिंग है, मैनुअल एंटर किया था मैंने, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी व्हाट हैपेंस। सेव, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट। आप जितनी बार यहाँ पे चेंजेस करोगे ना, टिल द टाइम यू मेक एनी चेंजेस, नीड एनालिसिस, ओके, सेलेक्ट, गो बैक एंड रिफ्रेश दिस, नीड एनालिसिस, ठीक है। So this is something called as क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, ठीक है। और ये बिल्कुल रियल टाइम पे यूज होता है। वो अलग बात है कि प्रोसेस बिल्डर से नहीं बनाएंगे, सॉरी, वर्कफ्लो से नहीं बनाएंगे, नॉट इवन विद द प्रोसेस बिल्डर। ट्रिगर्स जब मैं आपको सिखाता हूँ तो आप ट्रिगर्स बना सकते हो, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रियल टाइम सिनेरियो। रियल टाइम पे ऐसी जरूरत है
पड़ती हैं, जहां पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट का अपडेट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, कुछ फील्ड्स को आपस में अपडेट करें। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। ठीक है, with this example by today itself.